أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, as you all are aware about the current situation that we have been parting from one another for a month or so due to pandemic COVID-19. Yet we don't know how much time it will take more, but to overcome the loss, MHRD took an important decision, took an important initiative to reach each and every student through online as well as offline class and even through conference calls. Dear students, there are many platforms through which you will receive education, but at the same time, the main aim of these online as well as offline classes are to connect the teachers among the students so that the bond between the teachers and the students will remain connected even during the lockdown. That is why MHRD took that very decision. We can't compensate the loss, but to somehow we will overcome, we will supplement, rather we can say we will supplement to somehow the loss through these online as well as offline classes. May Almighty Allah end this pandemic as soon as possible so that we will resume our normal classroom activities in our schools. Now, coming towards the topic, that is in your textbook, chapter lesson 3rd, that is a poem, The Daffodils, written by William Wordsworth. First of all, as usual, about the author, that is William Wordsworth. William Wordsworth was born in 1770 in UK, England, in Lake District. Lake District is actually a city, rather we can say a state, a district in UK where William Wordsworth was born. William Wordsworth was unfortunate enough because at his early age, when he was just 9 years old, he lost his mother. And at the age of 13, he lost his father. That is why during his childhood, that almost spent, we can say, mostly around the surroundings, mostly in the mesmerizing beauty of nature. And as per the William Wordsworth, he gave the new pattern to a poetry. And as per the definition of poetry by William Wordsworth, that is spontaneous overflow of powerful feelings that has its origin emotions recollected in tranquility. And William Wordsworth, in most of his poems, the main theme, rather we can say the main aim of his teaching is to give, we can say give, the main aim of his teaching and the main theme of most of his poems are nature and the common man. And in 1843, he became a poet laureate till his death in 1850. And 1850, he departed from us. This is just a brief introduction about this great personality. If you want to enhance your knowledge, you can go through Wikipedia and you will search William Wordsworth. You have each and every detail in Wikipedia. But here we have a short of time because the speed of internet is very low. That is why we should cut this, you can say, lecture in just 20 or 25 minutes. Now, the current poem, the current piece by William Wordsworth, that is The Daffodils. First of all,
The Daffodils contains 4 stanzas, and each stanza contains a sestet. Sestet means 6-line stanza. And in this lecture, we will cover the first part, that is the first two stanzas, and in my next video lecture, we will cover the next part. Now, first of all, about the poem The Daffodils. And originally, we can say it was written in 1804, but William Wordsworth himself published it in a collection that is Poems in 2 volumes in 1807. And one more fact about this poem, in 1801, when it was first published, there were only 3 stanzas, and the second stanza was not there. But later in 1815, William Wordsworth himself designed the last version of this poem, that is The Daffodils. And in a very first, when he wrote this poem, originally the title of this poem was I Wandered Lonely as a Cloud. But later on, because the title has been changed, why it has been changed? Because the poem describes about the beauty of nature. While in the very first line, it gives us the impression of loneliness, it gives the impression of sad feeling. That is why in the later version in 1850, that is what we have today, in 1815, the title of the poem was changed into The Daffodils, and at the same time, the poem has now 4 verses. Second stanza was included in that. We can say in the next, we can say in the Daffodils, second stanza was included. Now, I will read this poem, and after that I will give its analysis. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. First of all, I refers to the first person pronoun that refers to the poet himself, William Wordsworth. First person singular personal pronoun, I. I wandered lonely as a cloud. Wandered means roaming here and there without any particular purpose. Moving here and there aimlessly. I was moving here and there without any particular purpose, just like a cloud. Just like Wordsworth himself said that I was moving here and there without any particular purpose, just like a cloud. He was alone, feeling alone, and was wandering here and was moving here and there without any purpose, and just like a cloud. But at the same time, about the clouds, when we talk about the clouds scatter, and after that the rain follows. But here we are not talking about those clouds which bears rain. We are talking about a patch of cloud over the valleys and hills. जो आप माउंटेन्स या जितने भी पहाड़ हैं उनके ऊपर होते हैं वो जो पैच ऑफ क्लाउड्स होते हैं, एक तरफ से जो है धूप भी होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो भी मूविंग हियर एंड देयर विदाउट एनी पर्पस. इनका भी कोई मकसद नहीं होता, उसके बाद जो है बारिश नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ जो है इधर उधर जो है जस्ट पर्पसलेसली जो है वो घूम रहे होते हैं. इट इज़ जस्ट ए पैच ऑफ क्लाउड, नॉट क्लाउड्स, इट जस्ट ए पैच ऑफ क्लाउड. एंड यहाँ पर जो है we are talking about that kind of cloud, a patch, a fragment of cloud. And William Wordsworth himself said that I was wandering, I was roaming, I was purposelessly moving here and there without any particular aim, just like a cloud. And यहाँ पर भी इन्होंने नेचर को ही जो है पोर्ट्रे किया है, इन्होंने अपने आप को क्लाउड के साथ कंपेयर किया, और वो भी उस क्लाउड के साथ जो पहाड़ों के ऊपर जो है विदाउट, वो जो है एक क्लाउड वो होता है, उसके बाद जो है बारिश होती है.
लेकिन ये उस क्लाउड की बात हो रही है, एक तरफ से धूप भी होगी, दूसरी तरफ जो है पैच, वो क्लाउड जो है वो भी इर्द गिर्द जो है, आपने कभी कभार देखा होगा वो टुकड़ा एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव हो रहा है, लेकिन इससे कुछ होता नहीं। दैट इज़ वाई उस क्लाउड के बारे में यहाँ बात हो रही है। और सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें, एक पोएटिक डिवाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पोएटिक डिवाइस? Poetic device is actually a tool in the hands of a poet to enhance the meaning of the poem, to give the clear description of the poem, to clear the mood, we can say, to give the mood, to give the feelings of the poem. That is why we use poetic devices. Or in other words, we can give an example. When we join two planks together, we use hammer as well as nail. When we can't join two planks together without nail. And this nail becomes a connector between these two planks. And then we will see something else. जो planks को join करने के लिए हमें जो है nail की ज़रूरत पड़ती है, hammer की भी ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हम दो planks को join कर सकते हैं। Same is the case, poem में भी जो है आपको different जो है fragmented मिलेंगे, fragments आपको मिलेंगे, सेपरेट पोर्शंस मिलेंगे। उनको मिलाने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए, उनमें फीलिंग्स पैदा करने के लिए, उनमें जो वो लिवली एक्सप्रेशन पैदा करने के लिए जो है हमें पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करना है, जिससे मीनिंग में भी इजाफा होता है और वो पोएट का एक हथियार भी होता है, एक टूल होता है जो वो इस्तेमाल करता है। हर पोएट हर एक एतबार से अपने तरीके से, यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी कुछ पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल किए हैं और यहाँ पर भी जो है इन्होंने एक पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल किया है, दैट इज कॉल्ड एज सिमिल। नाउ व्हाट एक्चुअली इज सिमिल? Simile is actually a poetic device that compares two dissimilar things by using like or as. दो dissimilar things को आपस में मिलाना, जैसे वर्ड्सवर्थ क्लाउड को कंपेयर कर रहा है। क्लाउड जो है इट इज टोटली डिफरेंट एंड विलियम वर्ड्सवर्थ इज टोटली डिफरेंट। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ह्यूमन है, क्लाउड जो है नेचर से रिलेटेड है। तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए जो है यहाँ पर वो सिमिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और वाई ही यूज सिमिल? बिकॉज यहाँ पर जो है वो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए, क्लाउड जो है वो तनहा होते हैं एक दूसरे, एक दैट मीन्स उनकी जो एक क्वालिटी होती है वो मूविंग हियर एंड देयर, कोई पर्पस नहीं। सेम इज द केस यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ भी पर्पसलेस था। यहाँ पर जो है इन्होंने एक मूव नहीं किया है, या वी कैन से ही वाज आल्सो मूविंग पर्पसलेसली विदाउट एनी पर्टिकुलर एम। इसीलिए यहाँ पर शायर ने जो है सिमिल का इस्तेमाल किया है। सिमिल का मतलब ये होता है कि दो चीज़ों को कंपेयर करता है, दो डिसिमिलर, नॉट दो चीज़ों को दो, बल्कि दो two dissimilar things when we compare by using like or as। जैसे I wandered lonely as a cloud, just like a cloud। यहाँ पर इन्होंने एक सिमिल भी इस्तेमाल किया, that floats on over valleys and hills when all at once। that means in a very first line it looks gloomy feeling, या it looks जो है we can say a sad feeling। because इन्होंने जो है इब्तिदा ही की है इस फीलिंग के साथ, जो सैड फीलिंग है, लोनलीनेस है, इट इज़ नॉट ए गुड फीलिंग। और उसके बाद when all at once means sudden, अचानक जो है I saw a crowd। यहाँ पर इन्होंने जो है I saw a crowd। when we talk about a crowd refers to groups of people। लेकिन यहाँ पर वो जो लोगों की बात नहीं करें, यहाँ पर वो डेफोडिल्स की बात करें। और यहाँ पर इन्होंने और एक पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल किया है, दैट इज कॉल्ड एज personification। what actually is personification? Personification is also a poetic device in which a poet gives human qualities or characteristics to non-humans। यहाँ पर जो है वो human quality जो है एक फ्लावर को दे रहा है, फ्लावर्स को दे रहा है, डेफोडिल्स को दे रहा है। That's why इन्होंने कहा कि all at once, अचानक सडनली जो है उनकी नज़र किस पर पड़ी? डेफोडिल्स पर पड़ी, नरगिस के फूलों पर पड़ी। A group, saw a crowd means many flowers। A host of golden daffodils। A host का भी मतलब होता है ग्रुप। किस ग्रुप की वो यहाँ पे बात कर रहा है? यहाँ पर वो लोगों की बात नहीं कर रहा है, बल्कि a host of golden daffodils। golden daffodils। और एक बात यहाँ पर, golden daffodils वो येलो भी लिख सकता है, क्योंकि कलर ऑफ daffodils जो है वो येलो है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने गोल्डन लिखा, इसलिए मैजेस्टिक पावर देने के लिए, इसमें रिचनेस बढ़ाने के लिए, इसमें जो है दो चीज़ें आती हैं। गोल्डन में एक गोल्डन येलो भी होता है और कलर ऑफ रिचनेस है। दैट इज वाई इन्होंने क्या कहा? एक होस्ट ऑफ गोल्डन डेफ्स। उनकी नजर किस पर पड़ी? गोल्डन डेफोडिल्स पर पड़ी। बिसाइड द लेक, कहाँ पर ये सेटिंग हो रही है? सेटिंग की बात हो रही है, कहाँ पर ये हो रहा है? बिसाइड द लेक, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। बिसाइड द लेक, बाय द साइड ऑफ लेक, वहाँ पर एक झील भी थी,
कहाँ पर इन्होंने ये जो है ग्रुप ऑफ फ्लावर्स देखे, ग्रुप ऑफ डैफोडिल्स देखे, और साथ में एक लेक भी थी बीनीथ द ट्रीज, और दरख्तों के नीचे, लेक के साइड में दरख्तों के नीचे जो है इन्होंने डैफोडिल्स, ग्रुप्स ऑफ डैफोडिल्स को देखा। और यहाँ पर जो है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, इससे क्लियर होता है यहाँ पर हमें लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड जो है उसकी ही बात हो रही है कि वहाँ पर जो है काउंटलेस लेक्स हैं, माउंटेन्स हैं और लैंडस्केप है, और वहाँ की बात हो रही है। वहाँ अचानक जो है इनकी नज़र जो है डैफोडिल्स पर पड़ गई, और डैफोडिल्स पर पड़ने के बाद जो है वो कहाँ पर है, एक तरफ से लेक है, लेक के किनारे पर, लेक के साइड पर, बाय द साइड ऑफ लेक, यहाँ पर इन्होंने प्रिपोजिशन इस्तेमाल किया, बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे, अंडरनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और यहाँ पर और एक फ्लैट पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है, फ्लटर। फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना या फ्लाई। When we talk about daffodils, they can't fly because only birds as well as some insects fly, like butterflies. लेकिन यहाँ बात हो रही है डैफोडिल्स की, तो फिर फ्लटरिंग एंड डांसिंग जो है वो क्वालिटी है ह्यूमन्स की। तो फिर यहाँ पर भी इन्होंने पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया। पर्सोनिफिकेशन मीन्स a device, a poetic device in which we give human quality, in which we give human quality to non-humans like daffodils. यहाँ पर fluttering and dancing in the breeze, ये जो daffodils कर क्या रहे थे, ये flutter कर, breeze means हल्की फुल्की हवा भी थी, and fluttering and dancing जैसे वो है उनके जो सर थे, we can say जो उनके ऊपर जो है जो फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं वो जो है वो मूव कर रहे थे, फ्लटर कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे इस हल्की फुल्की हवा में, एंड डांस जैसे वो जो झूम रहे थे, नाच रहे थे। दैट इज वाई यहाँ पर शायर वही कहना चाहता है, ए सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस। ऊपर की पहली लाइन को छोड़ के उसके बाद जो डैफोडिल्स की खुशबू है, डैफोडिल्स का जो लास्ट इंप्रेशन है वो शायर के जो है जहन में पड़ रहा है, और इसीलिए वो बात कर रहा है बिकॉज जो इन्होंने देखा एक्चुअल विजुअलाइजेशन, बिकॉज इसमें जो 3-4 स्टेंजाज हैं उसमें पहले 3 स्टेंजा जो है दे आर बेस्ड ऑन एक्चुअल विजुअलाइजेशन, जो कुछ उन्होंने देखा उन्होंने उसके बाद लिखा। लेकिन जो लास्ट स्टेंजा है दैट इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, बिकॉज जब वो उस सीन से हट के जो है उसके बाद कभी कभार भी जो है वो उदास होता है या कुछ और होता है, तो फिर उनके जहन में जो है ये बात घूमती है, इनके जहन में जो ये डैफोडिल्स जो है ये घूमते हैं। Now continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. In the next very stanza, continuous, यहाँ पर और एक सिमिल का इस्तेमाल किया है, continuous as the stars that shine. That means the daffodils were continuous. जैसे अब इन्होंने डैफोडिल्स को किसके साथ कंपेयर किया, स्टार्स के साथ कंपेयर किया। दैट मीन्स ये जो है दीज आर ऑल नेचुरल क्रिएशन, नेचर के बारे में। अब डैफोडिल्स को जो है इन्होंने स्टार्स के साथ जो है कंपेयर किया है, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन। जैसे स्टार्स जो है शाम के अंधेरे में जो है स्टार्स टमटमा रहे हैं, सेम इज द केस यहाँ पर डैफोडिल्स भी टमटमा रहे थे, यहाँ डैफोडिल्स भी चमक रहे थे, महक रहे थे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे जो है गैलेक्सी मीन्स ग्रुप ऑफ कॉन्स्टलेशन, ग्रुप ऑफ स्टार्स, और जो हमारी यहाँ है दैट इज मिल्की वे। मिल्की वे पे भी मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, वो जो चमक रहे होते हैं, टिमटिमा रहे हैं। सेम इज द केस यहाँ पर भी जो है डैफोडिल्स जो है वो शाइन कर रहे हैं, वो चमक रहे हैं, वो टमटमा रहे हैं। दैट मीन्स उनकी वो जो शाइनीनेस है वो जो है यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो बताना चाहता है। कंटिन्यूअस, और एक और पोएटिक डिवाइस दैट इज सिमिल का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रक्चर्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। नेवर एंडिंग लाइन मीन्स कंटिन्यूअस, उनकी नज़र जहाँ तक पड़ती है वहाँ तक जो है वो डैफोडिल्स की लाइन इज स्ट्रक्चर्ड, ये जो है खींच ही रहा है कि उनकी नज़र जहाँ तक पड़ रही है वहाँ तक जो है डैफोडिल्स की लाइन है। ये हो अलोंग द मार्जिन ऑफ बे, ये जो बे है, ये जो लेक है, लेक के जो मार्जिन पे, ये लेक के जो किनारे पर जो है जहाँ उनकी नज़र दौड़ती है वहाँ तक जो है वो ये डैफोडिल्स जो है उन डैफोडिल्स को देख रहा है। 10,000 saw at a glance. Saw at a glance. Glance means in just one look. He saw 10,000, but he can't count. He can't count one by one so that he can say that there are 10,000 flowers, daffodils. But यहाँ पर और एक poetic device का इस्तेमाल किया है that is called as hyperbole. But actually is hyperbole, that is an exaggerated statement. Exaggerated statement में इस तरह समझाऊँ, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट का मतलब होता है लाइक अगर हमारे यू कैन से कोई
आएगा हमारे गांव में और कहेगा यहाँ की आबादी क्या है, तो इन नटशल हम कहेंगे यहाँ की आबादी जो है 400 है। बिना जो है गिन के जो है बिना काउंटिंग के जो है वो बता रहे हैं कि ये 400 है, लेकिन हो सकता है ये 450 भी हो सकते हैं, हो सकता है वो 300 भी हो सकते हैं। दैट मीन्स इन्होंने एग्जैजरेटेड, इन्होंने इसी तरह जो है इस तरह किया कि ये जनरली दे आर 400। और यहाँ पर भी शायद जो है जो ही इनकी नज़र पड़ गई तो इन्होंने कहा कि 10,000 डज नॉट मीन 10,000, 10,000 मीन्स काउंटलेस। वहाँ पर काउंटलेस डैफोडिल्स थे, इसीलिए 10,000 saw at a glance in just one look, पहले एक ही नज़र में जो है उन्हें काउंटलेस डैफोडिल्स वहाँ दिखाई दे रहे हैं। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और टॉसिंग देयर हेड्स, हेड्स जो है उनके सर होते हैं। यहाँ पर भी जो है पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल है, वो जो है आपस में जो है एक दूसरे के साथ जो है जोड़ रहे हैं, वो सर को जो है एक दूसरे के साथ जो है मिला रहे हैं। टॉसिंग देयर हेड्स, अदरवाइज हेड्स जो है हेड्स मोस्टली जो है इंसानों के होते हैं। और यहाँ पर इन्होंने और एक डिवाइस दैट इज पर्सोनिफिकेशन का बखूबी इस्तेमाल किया है। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, स्प्राइटली मीन्स खुशी से, मेरीली, बहुत खुशी से जो है वो झूम रहे हैं, वो नाच रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो है शायद हमें यही बताना चाहता है, भले ही वेरी फर्स्ट लाइन, पहली लाइन को छोड़ के उसके बाद वाली जो लाइन्स हैं उनमें जो है आपको सिर्फ ब्यूटी ऑफ नेचर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चाहे हम क्लाउड्स की बात करें, चाहे हम डैफोडिल्स की बात करें, चाहे हम ट्रीज की बात करें, चाहे हम लेक की बात करें, चाहे हम ब्रीज की बात करें, चाहे हम डांस की बात करें, चाहे हम जिसकी भी बात करें वहाँ पर जो है, या चाहे हम मिल्की वे की बात करें, चाहे हम स्टार्स की बात करें, यहाँ पर जो है विलियम वर्ड जो है ही पोर्ट्रेज नेचर, यहाँ पर इन्होंने नेचर को अच्छी तरह जो है पोर्ट्रे किया है और हमारे सामने पेश किया है। और एक बात जो है मैं बताना भूल ही गया था, और इस डैफोडिल्स में जो है अगर हम बात करें राइम स्कीम की, तो राइम स्कीम जो है यहाँ पर अगर हम आई वेंटर्ड लोनली एज ए क्लाउड, क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, दैट मीन्स क्लाउड, hills, crowd, daffodils, last one is couplet that is trees, breeze। तो इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्लाउड ए, क्लाउड ए और हिल्स बी, क्राउड ए, डैफोडिल्स बी, दैट इज ट्रीज एंड ब्रीज, दैट इज सी सी। दैट में अगर हम इसमें राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम क्या है, दैट इज ए बी एंड सी सी, ए बी एंड सी सी जो है इसमें राइम स्कीम है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। और इंशाल्लाह जो है इट इज़ जस्ट द वेरी फर्स्ट पार्ट। इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल कवर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वेरी ब्यूटीफुल पोएम written by none other than William Wordsworth. But at the end, last but not least, any suggestion, do you feel free for any query, any question, any suggestion regarding the very first part। इंशाल्लाह उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पार्ट भी जो है थ्रू वीडियो लेक्चर जो है लेक्चर के थ्रू ही आपके पास जो है हम पेश करेंगे। लेकिन तब तक स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स, रेस्पेक्ट, take care of your parents, take care of your elders. Thank you, goodbye।